Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. I greet each and every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ. Today also we are going to meditate that your house is going to be filled with the presence of God in a mighty way and bring a lot of changes in the spiritual life, in your family life also. और आज हम इस बात पर फिर से एक बार मनन करेंगे कि आपका परिवार जो है एक ऐसी चट्टान पर बने कि वह उसके द्वारा से परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के आए और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें और उपस्थिति बढ़ती जाए. God wants to change your life. परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है. No more addictions. कोई भी व्यसन न हो, No more separation. कोई अलगाव न हो उसमें, No more fighting. कोई लड़ाई झगड़ा न हो Everything will be peaceful. और सब कुछ बिल्कुल शांत हो. Because he has gone through all the problem on the cross. क्योंकि वो पहले ही क्रूस पर इन सारी समस्याओं को लेकर के जा चुका है. If you read 1 Peter chapter 1 verse 15, अगर आप पहला पत्रस 1:15 को पढ़ें the Lord says, I am holy, you also be holy. तो वहाँ प्रभु कहता है तुम भी वैसे ही पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ. My friends, today we are going to meditate how we can become holy and follow his ways. मित्रों, आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि कैसे हम पवित्र बन करके उसके रास्ते में चल सकते हैं. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. He'll make your home a righteous home. He will bless you abundantly. Jeremiah 31:1 says, Lord God is the God of the families. और यिर्मयाह 31वें अध्याय के पहले वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर परिवारों का परमेश्वर है. He is the God of our family too. और वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे परिवार का भी परमेश्वर है. And we are his own people. और हम उसके लोग हैं. Zechariah chapter 8 verse 8 says, जकरिया 8 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है we will be his people हम उसके लोग होंगे and he shall be our God in truth and righteousness. और वो हमारा परमेश्वर सच्चाई और धार्मिकता से हमारा परमेश्वर होगा. He is a righteous God. और वो एक धार्मिक परमेश्वर है. And Daniel 9:7 says, दानियेल 9:7 में लिखा है O Lord, righteousness belongs to you
और प्रभु धार्मिकता तेरी है Righteousness belongs to you, O Father. और स्वर्गीय पिता धार्मिकता तेरी है। 1 Corinthians chapter 1 verse 30 says पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 30वें वचन में लिखा है that Christ is our righteousness. कि मसीह जो है वो हमारी धार्मिकता है। In the same way, if you read Jeremiah 23 verse 6 यिर्मयाह 23 अध्याय के 6 वचन को पढ़ें and 33 verse 16, और 33वें अध्याय के 16वें वचन को पढ़ें His name is the Lord our righteousness. और उसका नाम स्वयं है हमारा प्रभु जो हमारी धार्मिकता है। Yes, He wants to make our home a righteous home this morning. और वो हमारे परिवारों को एक धार्मिक परिवार बनाना चाहता You है। may say that your home is not yet righteous before the Lord. और शायद आप सोचते होंगे कि आपका परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी नहीं है। So many homes are broken these days. और कई ऐसे परिवार हैं जो आज टूटे हुए हैं। No love between husband and wife. पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं है All the time fighting between each other. और हमेशा आपस में लड़ते रहते No हैं। peace. कोई शांति नहीं है No job. Because of that, there is no peace in the house. और घर में नौकरी नहीं है, उसकी वजह से घर में शांति नहीं है All the time we are worried. और हमेशा हम चिंतित हैं What will happen tomorrow? कि कल क्या होगा सोचते हैं। John 11:40 says that the Lord is able to do anything and everything for you, my brother, my sister. और यूहन्ना 11:40 के मुताबिक प्रभु इस योग्य है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता But है, how to get all the blessings? लेकिन वो सारी आशीषें हम कैसे We पाएं? have to just believe Him. हमें उसके ऊपर विश्वास We करना have है, to just believe Him. सिर्फ उस पर विश्वास करना My है। Lord is enough. हमारा प्रभु काफी है, He'll take away all my problem. वो हमारी सारी समस्याओं को दूर करेगा He is there to help me at all times. और वो यहाँ पे मौजूद है कि हर बार मेरी मदद करे You have to believe only that. और आपको सिर्फ उस पे विश्वास करना And है then the Lord will come in your home, और फिर उसके बाद प्रभु आपके घर आ into जाएगा, your soul. आपके प्राण में आएगा He'll make your home a righteous home. और आपके घर को एक धर्मी घर बना देगा, Because He is the righteous God. क्योंकि वो स्वयं एक धर्मी If परमेश्वर He है। comes into your home, और जब वो आपके परिवार में आएगा if you invite Him to come into your home, और जब आप अपने परिवार में उसे बुलाएंगे if you live according to your ways in which He wants you to live, और जिन राहों पे वो चाहता है आप उस पे चलें, the Lord will be pleased to come into your home. तो वो खुश होगा कि आपके परिवार में वो आए। In the same way, He'll come into your heart and make you a righteous person. इसी तरीके से वो आपके हृदय में आएगा This और आप- morning, my brother, my sister, just believe that. और सिर्फ इस बात पे आप विश्वास करें, ऐसा होएगा। People will watch your life. लोग बाग आपके जीवन को देखेंगे And in your home, the Lord will come and stay with you. और आकर के आपके घर में प्रभु स्वयं निवास When the करेंगे। righteous God comes and stays with you, और जब वो धर्मी परमेश्वर आके आपके घर में रहने लगेगा all of you will be united together with one mind. और सबका एक ही मन होगा और एक हो जाएंगे आप, There will not be misunderstandings hereafter. और इसके बाद आपस में कोई आपकी गलतफहमी नहीं You होगी will have peace that passeth all understanding. और आपके पास वो शांति होगी जो मनुष्य की समझ से परे है। The Lord who is here right now this morning और प्रभु यीशु यहाँ पे मौजूद है, will change the hearts of every one of you. आप में से हर एक के हृदय को बदलने के लिए यहाँ है And He will bless you abundantly. और आपको वो बहुत आयत से आशीष देगा। Hallelujah. Hallelujah. What a great thing it is, my brother, my sister. मेरे भाई और बहनों, ये कितनी बड़ी बात है। Your home will be built on the rock of ages, the foundation. और आपका घर जो है उस बुनियाद पे जो सनातन की चट्टान है उस पे बनेगा। You will be built as a righteous person by the mighty power of God. और परमेश्वर की महाप्रतापी सामर्थ के द्वारा आपका घर एक की धार्मिकता पे बनेगा। He gave Himself on the cross just to make you a righteous person. और क्रूस पे उसने अपना जीवन दिया ताकि उसके जीवन देने के द्वारा आप एक धर्मी व्यक्ति बन जाएं। We have to look to the cross. और उस क्रूस पे अपनी दृष्टि आपको लगानी है। When we look to the cross और जब and उस- think of the righteous person who gave his life on the cross for us and who suffered for us on the cross, we automatically become a righteous person. और जब उस क्रूस पे लटकाए हुए प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी व्यक्ति उसकी तरफ हम देखते हैं, उसको देखने के द्वारा हमारे जीवन में उसकी धार्मिकता आती है। When this righteous person comes into our soul और जब वो धर्मी व्यक्ति हमारे प्राण में आ जाता है and when he comes into our home, और जब वो हमारे परिवार में आ जाता है, what happens? तब क्या होता है? If you read Psalm 32 verse 8,
अगर भजन संहिता 32वें अध्याय के 8वें वचन को पढ़ें, He'll teach you the holy ways. और वो आपको पवित्र मार्ग बताएगा, He'll say, my son, my daughter, go this way. और वो बताएगा मेरे बेटे मेरे बेटी इस मार्ग पे जा, Don't go that way. और उस मार्ग पे मत जा, And He will teach you every step you have to take. और हर एक कदम जो आपको लेना जिंदगी का वो बताएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. How He will do that? और वो कैसे करेगा? When you keep Him with you at all times. और जब आप उस यीशु को अपने पास हमेशा रखेंगे। John 10:30 says, यूहन्ना 10:13 में लिखा है, Jesus says, I and my Father are one. और वो कहता मैं और मेरा पिता एक हैं। And in the same way, my brother, my sister, you have to keep the Lord with you at all times. और इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, आपको प्रभु को अपने जीवन में हमेशा रखना है, You must become one with Him. और उसके साथ एक हो जाए, You must be united with Him. उसके साथ एक हो जाए। If you leave Him even for 1 minute, अगर एक मिनट के लिए भी अगर आप the उसे devil छोड़ will be दें, there to destroy you. शैतान वह होगा कि आपको नाश करे। That's why you have to read the Word of God. इसलिए आपको उसके वचन को पढ़ना है, You have to pray unto Him. और उसके लिए उसके सामने प्रार्थना करना, You have to think of Him at all times. और उसके बारे में हमेशा सोचते रहें, And the Lord will be happy to be with you and get united with you. और प्रभु वहाँ पे आपके साथ होगा और आपके साथ एक हो जाएगा, You can easily walk in the holy ways of the Lord. और आप उसकी राहों पे फिर चल सकेंगे। Secondly, if you read Exodus chapter 33 verse 14, अगर निर्गमन की पुस्तक 33वें अध्याय के 14वें वचन को पढ़ें, His presence shall go before you. उसकी उपस्थिति तेरे आगे आगे जाएगी, Wherever you go, और जहाँ कहीं आप you जाएं, may be going to search a job. शायद आप एक नौकरी ढूंढने जाएं, You may go for an appointment, for an interview. और शायद आप किसी इंटरव्यू में जाएं, And there you may be thinking, what shall I answer? और उस वक्त सोचेंगे मैं क्या जवाब दूंगा। Just say a prayer. एक छोटी प्रार्थना करें, Lord, कहें प्रभु you are with me. तू मेरे साथ है, Guide me and lead me. मेरी अगुवाई कर, मुझे लेके He will चल, lead you in a beautiful way. और वो अद्भुत रीति से आपको लेके चल। Every day when you start your life in the morning, और जब सुबह अपने जीवन को आप शुरू करें, husband, wife and children gather together. पति पत्नी और बच्चे एक संग जमा हो, Spend some time in prayer. और कुछ समय प्रार्थना में बिताएं, That is called the family prayer. और वो पारिवारिक प्रार्थना है उसमें These बिताएं। days people are in a hurry to go here and there and do something or other in the morning itself. और इस आजकल लोग बाग सुबह से ही चालू हो जाते हैं, ये जा रहा है वो कर रहा वो काम काम काम, That's why they don't go to the Lord in the morning time. और इसलिए वो सुबह सुबह परमेश्वर के सन्मुख में नहीं आते, They lose the blessing of God. और वो परमेश्वर की आशीषें खो देते। This righteous God says, I'll be with you at all times. और ये धार्मिक परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, When He will be with you, और कब रहेगा and वो, what you have to do, और आपको करना क्या you है, have to seek Him with all your heart. आपको पूरे दिल से उसकी खोज करनी है। If you seek Him, अगर आप उसकी He खोज will करें never let you down. तो वो आपको कभी He'll never शर्मिंदा let you नहीं down. कभी शर्मिंदा नहीं I होने have देगा। experienced this in my life for the past 44 years. मैंने अपने जीवन के 44 वर्षों में इसको अनुभव करके देखा है। According to John 14:27, और यूहन्ना 14:27 the के Lord will अनुसार, fill your home with His heavenly peace. और अपनी स्वर्गीय शांति से आपके घर को भरेगा, No fighting, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं no होगा, misunderstanding. और ना एक दूसरे ना समझी से आप ना लड़ेंगे, Automatically, the love of God will be poured into your soul. और आपके अंदर परमेश्वर का प्यार आ जाएगा, And the hand of God will be upon you all the time. और परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पे हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। According to Psalm 91:4 and 11, और भजन संहिता 91 के 4 और 11 वचन के the अनुसार, Lord will be protecting you under His wings all the day. और दिन भर परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में आपको छुपाए रहेगा। The same way, night also you gather together and give the night in the hands of God. और इसी तरीके से रात्रि के समय जब हम वापस आते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, The righteous Lord will not sleep and He will be with you, covering you under His wings even during the night time. और रात के समय भी हमारा परमेश्वर नहीं सोएगा और रात भर आपकी सुरक्षा करेगा। And Ephesians 2:19 and 20 says, इफिसियों 2:19 और 20 में लिखा है, You are no longer strangers but the household of God. और आप कोई परदेसी नहीं लेकिन परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। You are built on the foundation of saints of God, और and आप- Jesus Christ will be the cornerstone. और आप संतों की बुनियाद पे बने हुए हैं और यीशु मसीह आपके कोने के सिरे का पत्थर है। And there was one young man, और एक जवान था
He was spending his money when he was young as he liked. और जब वो जवान था अपने पैसे को वो जैसा चाहता था उसने खर्च किया। His father was a poor teacher, और उसका पिता एक बेचारा गरीब शिक्षक था, but that boy was a happy-go-lucky boy. लेकिन वो लड़का जो था बड़ा अय्याश था। So he'll spend all the money his father sends and he will not study. He'll go here and there to movies and spend time with friends and he'll lose all the money. और वो अपने बाप के पैसे को इधर उधर उड़ाता, पिक्चर देखता, ये देखता, वो देखता और बर्बाद करता पैसा। And he failed in many subjects and he could not pass in the degree. और वो कई सब्जेक्ट्स में फेल हो गया और डिग्री पास नहीं कर पाया। And when he came home, his mother was all the time sick. और जब भी वो घर आया उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। No money. कोई पैसा नहीं था। All the time fighting in the house. घर में लड़ाई लड़ाई। No peace. कोई शांति नहीं थी। He was dejected and depressed in his soul. और उसके आत्मा में वो बड़ा पस्त हो गया, बड़ा दबाव में आ गया। One day he said, एक दिन उसने, Why should I live in this world? इस दुनिया में मैं काय को जीऊं? Let me kill myself. मैं अपने आप की आत्महत्या कर लूं। Let me kill myself. मैं अपने आप को मार दूं। My young people, मेरे जवानों, you may be also in the same position. शायद आपकी हालत भी वैसी सी हो Why should I live in this world? कि मैं इस दुनिया में क्यों जीऊं? No job. और कोई नौकरी नहीं। No, I am not able to study. मैं पढ़ नहीं पा रहा। No wisdom and knowledge. और मुझे कोई ज्ञान और बुद्धि नहीं है। I don't have anything, money or anything in this world. और इस दुनिया में पैसा और कुछ भी नहीं मेरे Why पास। should I live in this world? और मैं अब इस दुनिया में क्यों जीऊं? You may be dejected और शायद आप ऐसे and पस्त हो गए, depressed in your life. अपने जीवन में बिल्कुल नाउम्मीद हो गए। My sisters, you may be saying, और मेरी बहन आप भी my ऐसे कहती husband हैं is useless. कि मेरा पति बेकार He है is not at all giving money to spend for the homely needs, और घर की आवश्यकताओं के लिए मेरा पति पैसे भी नहीं देता for the needs of the और home. घर की आवश्यकताओं के He is लिए not giving any money. और कोई पैसा नहीं दे My रहा। children are all the time sick. मेरे बच्चे हमेशा बीमार हैं। What shall I do? मैं क्या करूं? Every one of you may be thinking in your heart, why should I live in this world? और शायद आप अपने मन में ये सोच रही होंगी कि मैं इस दुनिया में अब जी के क्या करूं? But the Lord is enough for you. लेकिन यीशु आपके लिए काफी है। This boy also was like that. और ये जवान लड़का भी ऐसा था। One day he was getting ready to kill himself. और एक दिन वो अपने आप को मारने के लिए तैयार That था time somebody told him about Christ. और किसी ने उसको मसीह के बारे में उस दिन He बताया said, try Christ. और उसने कहा कोशिश करो, He will give you उसको परख के peace. दे, वो तुम्हें शांति He'll देगा, give everything. वो तुम्हें सब कुछ देगा। And he said, let me go and pray. और उसने कहा मैं जाऊं उससे प्रार्थना If he करूं, is a true God, अगर वो सच्चा let परमेश्वर him show to me why I don't have peace. और वो मुझे बताए मेरे पास शांति And क्यों he नहीं है। prayed for many hours. और उसने कई घंटे The प्रार्थना Lord की showed him what all the bad things he has in his life, और परमेश्वर ने उसको बताया उसके जीवन में जो भी बुराइयां what थी all the addictions he has in his और life, जो बुरी लतें थी वो बताई how he is spending his money and time as he likes. और जैसे वो अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा जैसा वो चाहता था। Then he cried and cried and cried, और उसके बाद वो रोया रोया और बहुत रोया। confessed all his sins. उसने अपने सारे पापों का अंगीकार किया Lord Jesus, और उसने कहा प्रभु thank you for showing me what all sins I have committed in the past. और जो कुछ मैंने पाप किए तूने मुझे बता दिया उसके लिए धन्यवाद। Forgive me, Father. पिता तू मुझे माफ कर दे, Make me a new man. मुझे एक नया व्यक्ति बना दे, Make new young और एक boy. नया जवान बना दे। The Lord heard his prayer. और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, Cleansed him with his precious blood. उसके बहुमूल्य लहू से धो के शुद्ध Made किया, him a new man. एक नया व्यक्ति बना From दे। that evening onwards, और उस शाम के बाद से he started to tell the word that the Lord is a living God. और उसके बाद से उसने दूसरों को बताना शुरू किया कि प्रभु He जीवित is a है true और God. वो सच्चा परमेश्वर है Jesus Christ is a loving God. और प्रभु यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है। Everywhere he started to preach. और वो सब जगह प्रचार करने लगा At the right time, और through उसी his father's prayer, he got a godly wife. और परमेश्वर उसके पिता की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से भय मानने वाली उसको जीवन साथी मिला And God blessed him with beautiful children who were also living godly. और उसके बाद परमेश्वर उसको प्यारे बच्चे दिए जो परमेश्वर के भय में जीते थे His home was blessed abundantly. और फिर उसके परिवार को बहुतायत से आशीष मिली। The same thing God is going to do to every one of you this morning. और आज सुबह आप में से हर एक के जीवन में परमेश्वर ये करने जा My रहा है। young people, मेरे जवानों, this is the best time to look to Jesus, और ये सबसे अच्छा समय है कि यीशु की तरफ अपनी दृष्टि लगाएं to come out of all your addictions and bad habits and bad nature. और बुरे स्वभाव और बुरी आदतों और उन लतों में से आप बाहर आ जाएं। God wants to make you a righteous person this morning. और आज सुबह परमेश्वर आपको एक धर्मी व्यक्ति बनाना चाहता है।
Our precious Heavenly Father, thank you, Lord, for all your love. Lord, you have shown love on the cross and made our homes a holy one. हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद आपके प्रेम के लिए जो आपने हमें दिखाया है क्रूस पर, और हमारे परिवारों को प्रभु जी आपने एक पवित्र परिवार बनाया है। Even though we are sinners in this world, जो अभी प्रभु जी संसार में हम पापी हैं, you bore all our sins on the cross and suffered. आपने हमारे सारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर दुख उठाया, Through your sufferings, you have made us holy. और आपने अपने उस सताव और दुख के उठाने के द्वारा हमें पवित्र ठहराया है। Those who are watching this program, वे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु जी, even though they are committing sins, are addicted to many sins, जो भी वे नाना प्रकार के पाप करते और उनके व्यसनों में पड़े हैं, by the power of God, let them be renewed in the spirit. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा से आप उनकी आत्माओं को नया कर दें। Right now, do a miracle in each person's life who is watching this program. इसी समय हर एक व्यक्ति के जीवन में जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु जी, आप एक चमत्कार करें। As you are holy, make them also a holy person. जैसे आप पवित्र हैं, उन्हें भी आप एक पवित्र जन बनाएं। Let them as an individual or as a family, let them be touched right now. चाहे एक व्यक्ति के रूप में या एक परिवार के रूप में, इसी समय प्रभु जी वो आपके द्वारा से छू लिए जाएं। Cleanse them with your precious blood which you shed on the cross. क्रूस पर बहाए हुए अपने अनमोल लहू के द्वारा से आप उन्हें शुद्ध करें। Give them a new life, उन्हें एक नया जीवन दें, a sanctified life, एक पवित्र जीवन दें, a righteous life, एक धर्मी जीवन a दें, pleasing life before you, Master. ऐसा जीवन जो आपके सामने आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। Have mercy upon each and every one. हर एक पर आप प्रभु जी दया करें। Lord, do a miracle in each person's life. हर एक के जीवन में आप एक चमत्कार करें। Change their stony hearts. आप उनके हृदय को जो पत्थर के हैं बदल दें। Lord, just like Saul made us fall, let them also be turned towards you. जैसे कि शाऊल जो है प्रभु जी आपके द्वारा पौलुस बनाया गया, वैसे भी ये भी आपकी ओर मुड़ जाए, फिर जाए पिता। Let your blessings come upon each person who is watching this program. इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक व्यक्ति पर आपकी आशीष आ जाए। As a family, let them be turned towards you. एक परिवार के रूप में वो आपकी ओर फिरे प्रभु। As a family, draw them closer to you right now. परिवार के रूप में इसी समय आप उन्हें अपनी ओर खींच लें। Let the miracle working power of Jesus come upon each person. हर एक व्यक्ति पर यीशु मसीह की चमत्कार करने वाली शक्ति आ जाए। Lord, let them be blessed abundantly. पिता वे बहुतायत के साथ आशीषित हो। If they don't have a job, supply this need. अगर उनकी नौकरी नहीं है, आप उन्हें दें। If they don't have children, supply this need. अगर संतान नहीं, उन्हें संतान दें। They say, oh, these debts are killing us. वे कहते हैं ये कर्ज हमें मार डाल रहा है। Lord, bring them out of all such position. ऐसे हर एक दशा से प्रभु जी आप उन्हें बाहर निकालें। More than everything, let them have peace that passeth all understanding. और उन सब से बढ़कर के वह शांति जो सारी समझ से परे है, वो Right प्राप्त now, करने पाए। right now, fill them with your peace, that divine peace. इसी समय अपने उस ईश्वरीय शांति के साथ उन्हें भर दें। Thank you, Lord, for hearing this simple prayer and honoring your children. धन्यवाद प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने और अपने बच्चों का आदर करने के लिए। Make everyone and their homes be a sweet home, a Christ-centered home and a blessed home. उन्हें दें कि उनमें से हर एक का परिवार एक सुखी परिवार, मसीह केंद्रित परिवार और एक पवित्र और धनी परिवार बने। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. नाम राजेंद्र प्रसाद जायसवाल है। मैं कलकत्ता का निवासी हूँ। मेरे जीवन में एक अचानक दुर्घटना हुआ। मेरा मकान, मेरा दुकान, सब कुछ मेरा परिवार, मेरा भाई छीन लिया। मेरा भाई और उसके लड़के छीन लिया। मैं फूट पार एकदम आ गया। उस टाइम हमारा जिंदगी एकदम नर्क सा ऐसा बन गया था। हमारा सुसाइड करने का जी करता था। जब मैंने प्रार्थना भवन में आया, जीसस कॉल में आया, तो मुझे एक पावर मिला, एक शक्ति मिला। फिर मन में परिवर्तन आया। फिर हम वो सब विचार छोड़ दिया और यहाँ के प्रेयर राइडर लोग हमारे लिए प्रार्थना की और हम
हम भी यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, तू तो सदा जीवित है, जीवित परमेश्वर है। तू अगर अन्याय मेरा मुकदमा लड़ने वाला तू ही है, तेरे ऊपर सब कुछ मैं सौंप देता हूँ। 2 महीना के बाद में हमको परमेश्वर ने दर्शन दिया, फिर हमारे जब मुश्किलों का उत्तर दिया, हमारा सब कुछ हमको फिरती दिया। जो भाई हमको 1 पैसा देने के लिए नहीं था, वो हमको बुलाकर बोला अपना हिस्सा ले जाओ। मेरे मकान का भाड़ा था, वो भी हमको वापस कर दिया। इसके बाद हमारी जिंदगी में जब भी कुछ आता है, जीसस कॉल आते हैं और हर प्रार्थना का उत्तर हमें परमेश्वर हमें देता है। हम हमेशा परमेश्वर का आभारी हूँ, उसका प्रार्थना करता हूँ, उसको मैंने ग्रहण किया। हम सब भाई बहनों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जब भी कोई विपद पड़े, जो कुछ हो, आप जीसस कॉल में आओ, वो प्रार्थना का जवाब आपको देगा। जीसस कॉल हमारा मंदिर है, हम जीते जी जीसस कॉल को भूल नहीं सकेंगे। मेरा जिंदगी ये जीसस कॉल से बढ़ा हुआ है और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हमारे ऐसे हर भाइयों को, हर बहनों को ऐसे उत्तर मिलते रहे। वो प्रभु को कभी ना छोड़े। ये जीवित परमेश्वर है, इनको हमने परखा है, इनको हमने चखा है, अपने जीवन में ग्रहण किया है और मरते वक्त तक हमने वचन लिया है कि मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। और जीसस कॉल में अधिक से अधिक समय मैं आके प्रार्थना करता हूँ और हमारे हर प्रार्थना का जवाब हमको मिल जाता है।